بھائی میں کرتا ہوں بات. ہاں ایک بندہ بولے اور جی جی ہاں ہم جی نفرت پھیلانے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں بڑی تکلیف ہے جی. وہ تو کہتا ہے میں قادیانی نہیں ہوں, تو ہم تو نفرت پھیلانے لگ جاتے ہیں. نہیں اچھا دیکھیں، ایک بندہ جب منہ سے ایک بول منٹ رہا ہے، یار. آپ کو اگر کوئی لگا ہو نا کہ راجا وہ کہ میں صاحب قادیانی ہوں یا میں میرے یہ عقائد ہیں، جب آپ کو وہ راجا صاحب ایک بات بندہ تو خود سنیں بول رہا نا. ہے میں نہیں ہوں، آپ بات تو کیسے اس کو سنیں اب. خود سے بنا آپ رہے ہیں؟ بات سنیں نا. بات سنیں گے نا. اب بات جی سنیں جی گے بولیں، آپ بولیں، چلیں تو ہم بولیں ان بولیں سے. بولیں آپ. ہاں جی ہاں جی. مان بھائی نیچے آپ نے سب آئے جناب ہیں، کہہ ان کو بھی دیا. لے لیں اوپر. کس کو؟ شاہ صاحب آئے ہیں شاید. جی شاہ صاحب آئے ہیں. جی شاہ صاحب ہی بات کریں گے. جی استاد محترم ہی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ جی, ان کا سوال ہے جی کہ آپ ان کی مرزا جونیئر کی تصویر لگا دیتے ہیں, تو آپ جناب ضرور ہمیں اس کو بدنام کر رہے ہیں. وہ تو کہتا ہے میں قادیانی نہیں ہوں, تو میں ان کو یہی کہنے لگا تھا کہ ہم بدنام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ قادیانیوں کی حمایت کرے, وہ نفرت پھیلائے, وہ علماء کے خلاف بات کرے, دین اسلام کے خلاف بات کرے, وہ صحیح ہے. جی شاہ جی. نہیں، اس نے کیا قادیانی کی حمایت کی ہے؟ مجھے تھوڑا بتا دیں. جی راجہ صاحب میں بتاتا ہوں اگر آپ مجھے سنیں گے تو. جی راجہ جی صاحب بولیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی بالکل آ رہی ہے سر. اچھا, آپ فرما رہے ہیں کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی نے قادیانیوں کی کہاں پہ حمایت کی ہے, ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل. ایک سٹیٹمنٹ چلے گی, 2 چلیں گی, 3 چلیں گی یا زیادہ چاہیے؟ نہیں، مجھے پراپر وہ بتانا ہے جس میں اس نے بولا ہے کہ قادیانی صحیح ہیں یا اس طرح اس طرح. ہاں جو وہی باتیں اس نے کی ہوئی ہیں میں قادیانیوں آپ کے کو بارے میں، میں وہ وہی یہی ہے کہ بتانے لگا ہوں کہ جہاں پہ وہ بتائے گا کہ قادیانی ٹھیک ہیں. نہیں تو نہیں، قادیانی ٹھیک کی بات نہیں. اس نے صرف یہ بولا ہے کہ اگر ہمیں قادیانی کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. وہ تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس وہ نے نہیں پورا وہ سمجھایا وہ ہے. سٹیٹمنٹ نہیں دکھاؤں گا. اچھا، دوسری یہ ہے کہ اس نے بولا ہے کہ آج کے جو قادیانی ہیں ان کو تو دعوت اصلاحی دینی ہے اچھا نا چلو جی. جی, یہ بھی نہیں دکھاؤں گا. بس یہ، اس کے علاوہ کوئی ہے تو مجھے اس کے بتا دیں. علاوہ دکھاؤں گا تو قبول کر لیں گے آپ؟ جی جی بالکل قبول کروں گا. چلیں جی, یہ سنیے گا ذرا توجہ سے. قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا, اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا, اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. اے کیڑی اسلام دی خدمت ہے. قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے, ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں, قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا. یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے ہی پڑھنا چھوڑ دیں, کہ ڈوڑا روند مار دے ہو یارا, پیٹ سے آپ آ کے بیٹھ گئے ہو, یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا, تو یہ 2 نمبری چھوڑ دیں. اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے, آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا, اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو, وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لنگوسٹک کا بنتا ہے. ترجمے میں کون کیسے بدل سکتا ہے, مجھے بتائیں. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمے بدل گئے؟ 8 ٹرانسلیشنز آف قرآن اور علماء کا دھوکہ, یہ بیسیکلی رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں, اور یہ قرآن کے دشمن ہیں کہ جی وہ ترجمے کون سا ترجمہ بدلا ہے. ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا, آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو, اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ, اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے, آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. خات جی ٹھیک ہو گیا. یہ سٹیٹمنٹ ذرا غور کریے گا کہ ویڈیو جاری ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے. کوئی ایک پورشن لے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے کوئی جناب فرق ڈالا ہو. اور سوال بھی اس سے یہ ہوا تھا کہ قادیانی ترجمے والے قرآن بانٹ رہے ہیں, آیا ہمیں وہ پڑھنے چاہیے کہ نہیں. اس کے اوپر وہ سیخ پا ہو گیا اور اتنی چیخ و پکار اس نے کی ہے, اتنا دفاع کیا ہے, اور پوری گھنٹے بھر کی کوئی ویڈیو اس نے لانچ کر دی کہ دیکھو جی قرآن کے ترجمے کوئی نہیں بدل سکتا, یہ مولویوں نے رنگ میں بنگ ڈالا ہوا ہے. اور خاص کر کے جو 1974 کی اسمبلی کے اندر جو ہمارا مین اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر انہوں نے ترجمہ جو ہے نا غلط کیا ہوا ہے, اور اس ترجمے کے تحت یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں. تو اسی کو چیلنج کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی وہ ترجمہ تو قادیانیوں نے بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے.
اور تمہارے تمام مسلمانوں نے وہ ترجمہ غلط کیا ہے. یہ دوبارہ ذرا تھوڑا سا پیچھے سے میں چلاتا ہوں, سنیے گا. ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا, آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو, اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ, اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے, آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے, لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے. ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا, اہل سنت نے, اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا. سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے, تشریح کے طور پہ. لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے, لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے؟ جی راجہ صاحب, یہ سٹیٹمنٹ آپ نے جو کہا تھا کہ یہ والی سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر کہو, میں نے وہ بھی پیش نہیں کی. ایک اور سٹیٹمنٹ تھی تو وہ بھی پیش نہیں کی. آپ نے کہا جی کہ مطالبہ یہ کیا تھا کہ کہاں پہ اس نے قادیانیوں کو ٹھیک کہا ہو, درست کہا ہو. یہ واضح ترین اس کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے جی قادیانیوں نے ترجمے قرآن کے بالکل ٹھیک کیے ہوئے ہیں, صرف آپ ترجمے نہیں, ایک ترجمہ اور ایک لائن کی بات ہو رہی ہے. نہیں, بات ہوگی تو لے کے جائیں گے. کوئی نہیں بولے گا, کوئی نہیں بولے گا. ایک نہیں جی, پورے قرآن کے ترجمے کی بات ہے. یہ دیکھیں, کوئی وہ کہہ رہا ہے کوئی ایک پورشن قرآن, پورے قرآن میں سے کوئی ایک پورشن لے کے آ جائیں کہ جس کے اندر انہوں نے کوئی ترجمے میں فرق نہیں, ڈالا قادیانیوں ہو. نے سارا قرآن بدل دیا, سارے ترجمے غلط کیا. نہیں, چھوڑ دیں. وہ کہہ رہا ہے کہ پورے کا پورا قرآن کا ترجمہ قادیانیوں کا ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. آپ کو کیا اس میں اختلاف ہے؟ دیکھیں, قادیانیوں کا قرآن اگر انہوں نے ترجمہ غلط بھی کیا ہے, آپ کو اس قرآن جس کی ذمہ داری اللہ نے خود دی ہے وہ, میں نے پوری ویڈیو ابھی آپ کو سنانی ہے دوبارہ. مجھے بتا دیں کیا آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی ایک چیز انہوں نے تبدیل کی ہے. دیکھیں جی, میں تو پوری ویڈیو دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا اس نے کیا بات کی ہے. دوبارہ ایسے کلپ کاٹ کے آپ سنیں گے تو ایسے دوبارہ سنیں. شاہ جی, ایک ویڈیو قادیانیوں کے چینل سے میں نے لی ہے, یہی ویڈیو انہوں نے خود یہ ویڈیو تیار کی اپنے چینل پہ لگائی ہے, وہ بھی میں سنواؤں گا. وہ اس میں بھی انہوں نے مکمل اس کا موقف لیا ہوا ہے. جی, وہ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. اور اچھا, ابھی مجھے ایک بات بتائیں, ابھی اور کوئی بات نہیں راجہ صاحب, بات ابھی آپ کا کیا, ابھی اس دور کے جو قادیانی ہیں ابھی ان کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ہم واضح طور پہ آپ موقف آپ بدل رہے ہیں اور موضوع بدل رہے ہیں. نہیں, موضوع میں آپ مرزا کی تو میں اب وہ 2 گھنٹے والی ویڈیو سنوں گا تو پتہ چلے گا اس نے کیا کہا ہے. ایسے شارٹ کلپس پہ تو سمجھ نہیں آتی نا کیا بات ہو رہی ہے. ہم نہ صرف مرزا غلام قادیانی بلکہ مرزا سینئر اور مرزا جونیئر جیلمی دونوں کو خنزیر سمجھتے ہیں, دونوں کو کافر اور مرتد اور زندیق سمجھتے ہیں. نہیں, میں وہ چلے وہ تو ہے مرزا قادیانی, جو وہ قادیان والا وہ تو کافر ہے, اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں. دونوں کو ایک نہیں, دوسرے کو چھوڑ دیں. ابھی جو قادیانی ابھی تک اس کے پیچھے چل رہے ہیں, قادیان والا بھی اور جہلم والا دونوں. اچھا, جو قادیان والا جو ہے اس کے پیچھے جو لوگ ابھی چل رہے ہیں, ان کا ابھی اس کرنٹ 2023 میں آپ ان کے بارے میں وہ ان کو کیا دعوت دینا چاہتے ہیں یا ان کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مارنا ہی چاہتے ہیں ان کو بس؟ جی, ہم یہ براڈ ہی کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تو. یہ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کا دماغ ہے کہ اصلیت لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں جو آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے. آپ ان کو, آپ کے دل میں یہ ہے ہی نہیں کہ ان کو مسلمان کیا جائے. مکالمات ہیں جو آپ کے کرنا نہیں چاہ رہے. آپ کے دل میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو مسلمان کریں. آپ بس چاہ رہی ہیں کہ گالیاں دیں. ابھی تو سچ ہے کہ جو ہم دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے, وہ آپ سننا نہیں چاہ رہے, کیونکہ الحق مرن, سچ کڑوا ہوتا ہے, وہ آپ سننا نہیں چاہ رہے. صرف یہ, کوئی مارنا مرانا نہیں, کوئی پھانسیاں نہیں, کوئی قتل نہیں, کوئی گولی نہیں, کوئی کچھ نہیں. بھائی اسی مسکین جے بندے ہیں, تسبیحاں پھڑ کے آ دیکھو نا, درود پاک والے لوگ ہیں ہم. تو گزارش یہ ہے کہ بھائی ہم تو صرف مکالمات چاہ رہے ہیں, وہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے, وہ آپ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہے ہیں. یہ مرزا جونیئر جیلمی قادیانی ہے, قادیانی تھا, اور اس کے مکمل قائد و نظریات قادیانیوں والے ہیں. جو حکم ہم مرزا قادیانی کے اوپر لگاتے ہیں وہی حکم اس کے اوپر لگاتے ہیں. اس کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتا دیں, مجھے یہ پرابلم ہے. میرے حساب سے بس یہ ہونا چاہیے کہ ابھی آج کرنٹ جو قادیانی ہیں ان کو دعوت اصلاح دینی چاہیے,
किसी की गलती है ठीक, उसको आप हाईलाइट इस्लाह ही करना तो दे रहे चाहिए। हैं जो आप करवाना नहीं इंस्टेड चाह रहे। आप बैठ जो के खाली जो बस राजा साहब आप करवाना नहीं चाह रहे इस्लाह कर तो रहे भाई हैं आपकी, आप तो उलझ रहे हैं ना। आपको तो हम इस्लाह कर रहे हैं ना आपकी, आप इस्लाह करवाना ही नहीं चाह रहे, उलझ रहे हैं। हम तो ये देखते हैं भाई, आप एक बंदा जाहिर में जब कलमा पढ़ रहा है वो कह रहा है वो मैं कलमा मुसलमान तो हूँ, आप उसको मुसलमा खाम कज़ाब भी काफिर पढ़ता करने की। था, असवद अंसी भी पढ़ता था, और जितने भी मुद्दईयाने नबूवत है सब कलमे ही पढ़ते थे, सब दाढ़ियां रखी हुई थी, सब ने पग्गें बांधी थी, सब ने हाथ में कुरान पकड़ा हुआ था, सब हदीसें सुनाते थे। बहाउल्लाह ईरानी जो मिर्ज़ा कादियानी के दौर के अंदर था, जिसने नबूवत का दावा किया, वो भी कलमे ही पढ़ पढ़ के सुनाता था। वो कौन सा सर कोई नबूवत के ये दावे जो रांझा कर रहा सुनाता था है आपको? ये तो बात है, आप सारा कुछ मिक्स कर देते हैं। ये अब वीडियो किधर गई? वो देखा ना मौजू आप कहाँ का कहाँ ले गए। मैं वीडियो दोबारा सुनाऊंगा, इसके ऊपर मुझे जवाब चाहिए, वो वीडियो दोबारा मैं पूरी सुनिए। देखूंगा, मैं सिर्फ 2 चले मिनट का अभी क्लिप तो से कोई अभी रिजल्ट तो नहीं बता आप रहा भाई। देखेंगे तो बात की बात है, वो ना ही तो कल किसी ने देखी है और ना ही आपने ठीक है, बाद इस में तरह बहुत सारी चीजें हुई हैं, आप हमारे अगर बस हथे छोटे छोटे चढ़ना क्लिप है। काट के तो बस अभी तो ये दूसरे सुनिए ना, बंदे को उससे जो है ना सवाल ये हुआ है कि कादियानियों का गिरा रहे हैं। तर्जुमा तब्दील, कादियानियों का तर्जुमा तकसीम हो रहा है, तो वो पढ़ना चाहिए कि नहीं? उसके ऊपर इतना सीख पाव ये क्यों हो गया जनाब? इसको क्या तकलीफ थी? इसको क्या तकलीफ थी? कोई और सीख पानी हो सीधी बात वो कर रहा है, वो देखे, बात करने सुने ना, देता है, सुने जरा, आए भी हैं आप। सुने जरा। कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। नहीं नहीं ये आप देखे, उससे बात सवाल ही बहुत ये हुआ आपने है कि कि कुरान तर्जमे कादियानी से ना तर्जमे पढ़े। वाला कुरान बांट रहे हैं, ये तर्जमे वाला कुरान ना पढ़ें। अब इसका आगे वो जवाब सवाल देने हाँ लगा है, जरा सुनिएगा। तुसी बड़ा तड़फना है, मैनू पता है राजा साहब, मैनू मेरे ये बाजू मारे अजमाए हुए हैं, तुसा मैनू बोलन ही नहीं देना। मैनू पता है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ नहीं ਜ਼ਰਾ। तो रोला ना जी, कम वो करो कि किसी सारे एक पेज पे आ जावन इंस्टेड। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ है ਕਿਹੜੀ इस्लाम की खिदमत है भाई कि तुसी जड़ा कादियानियों के तर्जमे जो है ना रोक रहे हो, लोगों को कहते हो नहीं तर्जमे ना पढ़ो। ये केड़ी इस्लाम की खिदमत है? ये केड़ी इस्लाम की खिदमत है राजा जी? ये केड़ी जे दसो जड़ा केड़ी खिदमत है? क्या लोगों को ये कुरान के इनके कादियानियों के तर्जमे से बांटे, ये लो ले लो म्यूट भाई, कर दिया, ये लो। मैं क्या बोलूं हाँ अब। जी बताएं, ये किधर केड़ी गया इस्लाम की खिदमत है भाई? बताएं जरा। ये उसने नहीं कहा, ये तो आप बातों से बातें खुद ही निकाल रहे हैं। नहीं वो कह रहा है, आपके अभी साथ मैंने पता नहीं क्या स्टेटमेंट बंदा आपको गिरे सुनाई है, मुकर ही गए हो, मुकर के ही मुकर गए हो। गए। ये एक गल ड्रामेबाजी। एक लैंड सड़ा के तुसी सारा कुछ मनवाना चाह रहे हो। अच्छा मैं फिर तो आप वीडियो पूरी फिर तक आप ये बता दें, मुकदी मकाओ मुकदी कि मकाओ तुसी फिर मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ते मिर्जा जूनियर जेल में ते लानत किदन पानी है? तुर गए हो? औकात तो यही है बस। मैंने नहीं अभी निकाला, जब खुद ही भागा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे भी पता है आपने नहीं निकाला, हम तो निकालते नहीं भाई किसी को, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो हमारा ये मिशन भी नहीं है, हम तो मुकालमात वाले हैं। ये कादियानी है, ये देखे वो मिर्ज़ा जूनियर जेल में कब वो हमायती बन के है। ये कादियानी है, ये लोग पीछे पर्दा, ये सारे कादियानी और एथियस्ट और दैर ये इसके पीछे लगे हुए हैं जी। चार्ल्स साहब आए हैं जनाब। जी चार्ल्स साहब, एक या दो दफ़ा कहूँगा, उसके बाद आपको उतार दिया जाएगा। चलें जी आगे जी, क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं हम, मुकालमत वालों को हम खुद नहीं निकालते। अगला जी, अगला कॉलर को है तो आओ। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कितों कैमरा यार कितों ऑन होंदा? एक बारी मेरे कैमरा ऑन कर लें जरा। तो डराना है। भाईजान क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो मुफ्ती साहब? ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਹੈਲਪ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ जी? मैं कहा मैं रोज़ प्रोग्राम देखता हूँ भाईजान, आपको 2-3 बार रिक्वेस्ट भी भेजी, आपने तो पिक ही नहीं की, कॉल ही नहीं पिक की। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ कैमरा ऑफ कर दियो। एक मेहरबानी है, आपने हमें टाइम दिया। कम्युनिटी गाइडलाइन भी जो है ना वो मसला बनेगा, कैमरा ऑफ कर दें, क्योंकि वो टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत वो फिर जो है ना वो हमारी ब्रॉड के ऊपर मसला बनेगा, स्ट्राइक आ जाती है। अगले बंदे को लें जी। गाड़ी चलाते हुए कभी भी
शराब नोशी है, सिगरेट नोशी है, या ये वाले काम वो कम्युनिटी गाइडलाइन में आता है और बड़ा मसला बनता है। जी जनाब, अगले कौन है जनाब? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी मुफ्ती साहब, क्या हाल है? सब भाई ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा सर, मैं सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, मैं किसी उसके बारे में बहस नहीं करने आया या ना किसी को कुछ कहने, मेरा एक जस्ट क्वेश्चन है आप सब भाइयों से, मुफ्ती साहब आपसे भी और आपके जितने तालिब इल्म सुन रहे हैं सबसे एक क्वेश्चन है मेरा, कि जब इंसान ने मर जाना है, कब्र की जो पहली रात है कब्र में, क्योंकि हमने अक्सर ये स्कूल में पढ़ा है, किताबों में है कि वहां पे सवाल होगा कि आपका दीन क्या है, तो हमें जवाब में बताना है कि मेरा दीन इस्लाम है। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं सही कह रहा हूँ? आप मुझे थोड़ा गाइड आप सवाल कीजिएगा। कर लीजिए, बाद में जवाब देता हूँ, सवाल कर लें आप। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मरने के बाद जो कब्र में पहली रात है, वहां पे हमने जवाब दे होना है कि बंदे तेरा दीन क्या है, इस्लाम, तो वहां पे कोई फिरका नहीं बताया गया कि हाँ मैं अहले तशी हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं देवबंद हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं बरेलवी हूँ। इसके बारे में सर मुझे थोड़ी आपसे इंफॉर्मेशन और मालूमात चाहिए। बाकी जो आप काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको जजा दे और आप अपने मिशन में लगे रहें। बस ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर चाहिए। पहली बात तो ये है कि मोहम्मद नाम इनका पता नहीं क्या है। मोहम्मद साहब सवाल कर मोहम्मद रहे हैं कि कटियान। जी जी शाह जी मैंने उतार दिया है मोहम्मद नाम। साहब सवाल कर रही है, हमारे मौजू के तहत नहीं है कोई भाई, ये कब्र में क्या होना है या हशर में क्या होना है। हमसे तो ये पूछें कि कब्र में मिर्ज़ा सीनियर और मिर्ज़ा जूनियर को लितर लगने हैं कि नहीं, उसका जवाब ज़रूर देंगे हम। हशर में इनको छितर लगने हैं कि नहीं, ज़रूर जवाब देंगे। ये जन्नत में जाएंगे या जन्नत में, ज़रूर बताएंगे। हमारे मौजू के तहत नहीं ये सवालात भाई, ये कोई तसव्वुफ़ टाइप के ये सवालात हैं और हमारा ये मिशन ही नहीं है। अगला अगला कलर लें भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। जी जनाब। हाँ जी, मेरा नाम अली है। मैं दुबई से आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सवाल है, आपको शायद आप जवाब दे सकते हो। अभी आपसे मैंने अभी आपकी ये सुना है, आपने बोला है कि मिर्ज़ा जेलमी जहन्नमी है और वो गुलाम जो है उस वो जहन्नमी है, वो हम आपको बता सकते हैं। और मेरा इसी पे क्वेश्चन है कि आप काइंडली इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा कि यानी ये किस बना पे ये फैसला इंसान कर सकता है कि वो जहन्नमी है या जन्नती है या अल्लाह बख्शने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने बोला है मैं शिरक जो है वो माफ़ नहीं करूँगा, बाकी जिसको अल्लाह चाहे माफ़ कर देगा। कौन सी तो कुरान की आपके आयत है? जी, ये कौन सी कुरान मैं की आयत है? मैं अभी तालिब इल्म हूँ, मैं सिर्फ ऐसे कुरान को पढ़ा है तर्जुमे के साथ, तो अमूमन कोई मेरे साथ ना ये तर्जमे के साथ जो कुरान पढ़ा है उसमें कौन सी आयत आपने तर्जमे के साथ पढ़ी है जिसका तर्जुमा ये है कि मैं शिरक को माफ़ नहीं करूँगा, बकाया हर गुनाह को माफ़ कर दूँगा? मैं वो आपको ना नीचे कोड कर देता हूँ, तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे करके जाता हूँ ना, मैं अभी आपको ना नीचे। आप अभी आप इधर ही रहेंगे, काल के अंदर ही रहेंगे, और जी आयत तलाश करके ना वो मुझे ज़रा थोड़ी सी चाहिए ज़रा। जी जी, ज़रूर ज़रूर, मैं तलाश करता हूँ इंशाल्लाह। आप मुझे, हाँ जी, आप दूसरा सवाल ले लें किसी से। वो बाद में, अगले सवाल बाद में। इसका पहले रेफरेंस मुझे चाहिए। बड़े अरसे का ये कादियानियों ने और मरदइयों ने ये चीज़ चलाई जी हुई है, वो आज तक जी हमें जी आयत मिली नहीं है, तो वो आप जी मुझे जी। चाहिए ये आयत। अगर अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, तो मैं ऐसा कोई करता बात हूँ, नहीं। दोबारा आपका प्रोग्राम मैंने फॉलो कर लिया है, एक इंशाल्लाह घंटे आपसे बाद, दोबारा। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने जी बाद, टाइम क्या जी, मतलब? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अली साहब को गिरा दें ताकि वो अच्छे तरीके से वो कुरान की आयत जो जो तर्जमे वाली उन्होंने पढ़ी है वो उसको तलाश करके ले आए। जी जनाब। ये भी चले गए हैं।
جی آگاہ اجاز صاحب. جی آگاہ اجاز صاحب. اور بہت ہیں. اگلے کو لیں. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो वालेकुम अस्सलाम. आप खुद को मुफ्ती कह रहे हैं, उसने सीधा सा सवाल पूछा, उसको जवाब दें. आपने ज़रूर सींग फंसाने वाले काम करने हैं. पहले उसको सीधा से जवाब दें. उसने कब्र के सवाल पूछे हैं. یہ ہماری मुसलमान एक براڈ सीधी اس बात موضوع नहीं, پہ एक मुसलमान براڈ اس براڈ नहीं, موضوع उसने پہ نہیں. सवाल میں یہ पूछा کہہ رہا ہوں زاہد صاحب, सर ہماری मौजूद براڈ नहीं है. ہماری براڈ اس موضوع پہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی آیا خنزیر ہے کہ نہیں. سر اس نے کوئی دوائی کا نام تو ہماری نہیں پوچھ براڈ لیا اس نا, موضوع پھر پہ ہے میڈیسن کا مرزا نام اس نے جونیئر اسلام جیلمی کا نام خنزیر پوچھا ہے نا. ہے کہ نہیں. صرف اس موضوع پہ ہے میرے بھائی, اور کسی موضوع پہ نہیں. وہ آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی مرزا جو جیل میں کو غلط ثابت کرنے کے لیے. آپ اس کو غلط تو بس ثابت, یہ کیونکہ آپ کا معیار ہی نہیں اس کے علم ان کا. دو موضوعات کے اوپر ہی گفتگو کریں آپ ہم سے جتنی کی مرضی نسلیں کریں ختم ہو کہ جائیں گی. مرزا سینئر آپ کی غلام نسلیں ختم قادیانی ہو جائیں گی. خنزیر ہے کہ نہیں, اور خنزیر کا بچہ ہے کہ مرزا نہیں, غلام احمد قادیانی اور مرزا جونیئر جیل میں خنزیر اور خنزیر کا بچہ ہے کہ نہیں. تو یہ وہ موضوع ہے اللہ ہمارا. کا بندہ ہے, اور تم لوگوں پہ قیامت بن کے ٹوٹا ہوا ہے. جی تم لوگوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی, سوال کہاں پہ گیا آپ نے سوال کرنا تھا. کیونکہ تمہارا علم ہی نہیں ہے اس کے قابل. بھائی سوال کرو زہد. میرا سوال وہی ہے جو میں وہ بندے کا میں مرضی پہ لعنت بھیجتا ہوں. پھر ہم ٹھیک ہے نا, سوال کر لیں, پھر ہم سوال کر لیں. وہ کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں. وہ چاہتا ہے جی ظاہر صاحب کی جو امی ہوگی اس کو 4 شوہر ملیں گے. کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ یہی آپ سے کام ہے, آپ تو گالی دیں گے. آپ نہیں گالی نہیں, دیں یہ گے. میں سنا دوں اس کی ویڈیو سنیں. یہ سنیں ذرا, آپ کا علم یہ ویڈیو تو سن لیں, آپ ناراض نہ ہوں. ویڈیو سن لیں, چھوڑیں کیوں, اب چھوڑ دیں. اب آپ کی امی کی بات آئی ہے, آپ کی امی کے 4 شوہر وہ بنا رہا ہے, وہ آپ کو قبول ہے. کل ہماری براڈ ہوئی ہے, وہ ایک مرزئی آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میری امی کے 4 شوہر ہوں گے. مولویوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو آپ بھی کہیں نا کہ بھائی مولویوں تمہیں کیا تکلیف ہے, ہماری ماؤں کے 4 شوہر ہونے ہیں نا. گل ختم ہوتی ہے. بھئی آپ کو اتنا ہی پسند ہے تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ماؤں کے 4 شوہر ہونے ہیں. بھائی جان میری بات سنیں. آپ کی ماں کے 4 شوہر ہونے ہیں کہ نہیں, یہ بتائیں. پہلے یہ بتائیں آپ کی ماں کے 4 شوہر ہوں گے. آپ کیوں چھوڑیں, وجہ تو بھی بتائیں نا. اب سوال کی بات آئی ہے تو چھوڑیں کیوں جی. آپ کا لیول کی ہی ماں وہ کے نہیں 4 ہے. شوہر ہونے ہیں کہ نہیں. لیول ہی نہیں ہے. آپ کی امی کا وہ کے لیول ہی نہیں ہے. چلیں آپ اپنی آپ زوجہ کی بتا مرزا دیں. کی بات کو غلط ثابت کر آپ کی زوجہ کے 4 شوہر ہوں گے کہ نہیں. ہاں جی, آپ اس کو غلط گپا ثابت کر مارن آئے سکتے. ہو, آپ نے اس کی ایک ویڈیو گپا مارن آئے ہو, بس نہیں آیا. آپ سر ڈا کے رکھنا ہے, بس سر ڈا کے رکھنا ہے. تے ماواں دے 4 یار بنائی جاؤ, تے بیویاں دے 4 یار بنائی جاؤ, تے اپنی باجیاں دے 4 یار بنا کے رکھو, دب کے رکھو مرزیو. ہور تانوں کوئی کم نہیں مرزیاں نوں. فارغ کرو بھائی, اگلے ڈیبیٹ کرو ہمارے ساتھ. ڈیبیٹ مرزا جونیئر جیلمی کی ان باتوں کو سچا ثابت کرو قرآن اور حدیث سے. چلو یہ 4 شوہر والی ویڈیو میں سنا دیتا ہوں. ہمارے لیے کچھ نہیں. جی عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے, یا وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا, میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو, یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے, تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی وہ جس سے پہلے بھی سوالات آ چکے تھے کہ قبر کے حوالے سے. یہ آپ اس پر بلیو رکھتے ہیں کہ بھائی مرزیوں کی مائیں اگر خواہش کریں گی تو 4 شوہر ملیں گے.
नहीं नहीं, मैं किसी पे बिलीव नहीं, मैं बिलीव करता हूँ कुरान किस पे पे, बिलीव हदीस नहीं पे रखते और आप? उलमा पे बस। शाह जी, ठीक है। यार एक मिनट शाह जी, यार, ये अभी लानत करके गया है मिर्जा जूनियर पर, और देखे फिर दिफा करेगा ये मैंने कहा था ये दिफा करेगा। एक मिनट ठहर जाओ, हाँ मैनू भी पता है यार। जी जी, सुने, हम जी, किसी को इधर बैठ के फैसला कर मिर्जा सकते हैं जूनियर जेल में जहन्नमी है कहता है कि अहमद रबाब साहब की अम्मी के 4 शोहर होंगे, आप मानते हैं? गलत, मैं गलत बात बोला ना, वो तो गलत है क्या हर गलत बंदा। बात बोला ना? तो मैंने वाज़े मैंने तौर पे बोला बताओ कि कि नहीं भाई आपकी माँ के 4 शोहर होंगे या नहीं होंगे। गलत बात है ना। क्या गलत बात है ना? अब गलत कौन सी जो है कि होने गलत हैं कि ना होने गलत हैं? यार, वो टॉपिक की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं क्यों ये नहीं बात कर रहा टॉपिक? हूँ कि हम। मैंने अभी वीडियो सुनाई है, ये बताएं तो सही ना जी, कि किसी गलत औरत है, के 4 शोहर होना गलत बात है या ना होना गलत बात है? गलत, गलत है। क्या गलत? चार चार बीवियों वाली बात कही, 4 बीवियों वाली नहीं और भाई। शौहरों वाली। और यार तुम क्या ओरल सेक्स तो नहीं करवा रहे? जी, आप मुझे ओरल बताइए सेक्स करवा सवाल रहे हो से। ना? सही बता, तुम किसी काम में मसरूफ हो तुम? बता तो सही ना, वो क्या हो गया, चुप हो गई, लग गई? नहीं नहीं करवा रहे? क्यों नहीं करवा रहे जी जी, मुझे कॉल आई थी, भाई? मुझे कॉल कॉल आई नहीं थी, आई ओरल आपने आपका सेक्स? सवाल बता दो। ओरल सेक्स क्यों नहीं करवा रहे पहले ये जी, बताओ, क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं, क्यों नहीं मैं ये लम्हे पूछ यार? रहा हूँ। पै जाओ लम्हे पे, लम्हे पा ए फड़ाई ओ लित्र जी फड़ाई, ओ परा जड़ा पिया ओ पालिश कीता होया, फड़ाई जरा जी, पै जाओ लम्हे, आप लम्हे पै जा। तेनू पता ही को नहीं है अरबाब। आपका सवाल दोबारा से दोहराइए। सवाल नहीं, मैं तो सिर्फ मासूमन है पूछे है कि तुसी ओरल सेक्स क्यों नहीं करवा रहे? यार, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। क्यों नहीं इल्म? आपको पता ही नहीं है? जी नहीं। मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ये देखिए आपको इल्म दे रहे हैं, ये ज़रा सुनिएगा। हेलो, वो तवज्जो नाल सुनिया जे, ये देखो। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज़ है ना, अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद सबसे पसंद। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे पसंद। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे पसंद। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन। वो तो कह रहा है कि तौहीद के बाद जो नंबर आता है ना वो सेक्स का आता है। वो कहता है मुझे सबसे ज़्यादा सेक्स पसंद है तौहीद के बाद इस्लाम का। तो क्या आप इसके ऊपर बिलीव करते हैं? ये बात गलत है, मैं मानता हूँ। क्या गलत है ये यार? बात हर ही नहीं चीज करनी गलत चाहिए। है। तो सही केड़ी ये जो सेक्स केड़ी मिर्जे जूनियर जेल में दी गल जो से सेक्स पेश करिए ये गलत है, तो सही तो केड़ी नुकरों लग रहा है भाई? जो सेक्स वाली बात है वो गलत है बोला मैंने, आपने नहीं, वो ये कह रहा है सवाल तौहीद के बाद जो उसका इस्लाम है ना, वो जिस इस्लाम की तरवीज इशात कर रहा है, वो कहता है उसके अंदर तौहीद है सबसे पहले और उसके बाद आता है सेक्स। क्या मिर्जा जूनियर जेल में क्या आप इस इस्लाम को कबूल करते हैं? आपकी आवाज़ कट रही है। आवाज़ मेरी नहीं कटती पे, ਤੁਹਾਡੀ कटती है पे, ध्यान रखो। जी 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 मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा मेरा हूँ ये कि क्या सवाल था आप कि मिर्जा जूनियर जेलमी के जी इस्लाम को मानते हैं जिसके अंदर मिर्जा जूनियर जेलमी के इस्लाम के अंदर सबसे पहले तौहीद है उसके बाद सेक्स है? नहीं मानता हूँ ना, नहीं, मैं तो उसके कुरान को इस्लाम को मानता नहीं हूँ, हदीस मानते, को उसके इस्लाम को नहीं मानते नहीं आप? मानता हूँ। ठीक हो गया, यानी नहीं वो मानता हूँ। गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं अभी कैसे तो कह रहे फैसला हैं कर नहीं मैं सकता उसके इस्लाम को नहीं मानता, तो साथ ही कह रहे हैं कि नहीं उसको गैर मुस्लिम नहीं मैं मानता। हूँ? वही तो बता रहा जी सकता वही। हूँ इस बारे में। जी, आवाज़ आ रही है? यार आपके नेट का ना प्रॉब्लम है कोई। और यार किसी मरदई ਨੂੰ ਲਵੋ ਯਾਰ ਕਿ ਸਿਰ ਖਪਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰਦਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰਦਈ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਦੇਵੇ ਨਾ। जी वालेकुम सलाम। ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਮਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਦਿਓ ਭਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਰਦਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਰਦਈ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦਈ ਨੂੰ ਲਵੋ ਯਾਰ। हेलो जी जनाब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप तो पहले भी आए थे, आकर ही जाता। अस्सलाम वालेकुम। यार इनका शोर बहुत है भाई, शोर बहुत है यार। जी आगा इजाज साहब, यार उस्ताद मोहतरम वो शोर बहुत है, मैंने उतार दी है। अच्छा चलो ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਸ ਹੈ। ऐ दसेगा हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है भाईजान? आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी हेलो, जी हेलो। नहीं, हेलो, हेलो, आपने तो इधर हेलो भाईजान आपने तो इधर बैठ के मोहम्मद अली को मरज़ई डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल। वो तो आप सबको मुसलमान कहता है वो तो। ओ यार मेरी जान, वो तो आप सारे मुसलमान कहता ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज़ है ना, अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज़ है ना, अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ इसलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज़ है ना, अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਹੈ। ਕਿਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ। ਬੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਹੈ? ਜੱਟ, ਅਸਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਓ ਜੀ। ਕਿ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿ ਐਸੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮ, ਨਵਾਂ ਇਸਲਾਮ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੈਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਹੜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਹੜਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ? ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ, ਐ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਸ ਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਮੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੂਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਰ ਖਾਏਗਾ, ਸਿਰ ਖਾਏਗਾ,
ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਯਾ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਬਈ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਬਈ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਕ ਬਕ ਕਰੇ ਤੇ ਜਬ ਜਬ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? किताबी नु लभदे हो पे जी अरबाज साहब जनाब। सर जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मैं तो आपकी ब्रॉड मतलब इतनी देखी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। ये आप मतलब अली मिर्जा इंजीनियर जो है, मैं इनका रिसेंटली एक सुन रहा था, वीडियो में देख रहा था, मुझे उनकी वीडियो मिली जिसमें वो अभी वो वीडियो जो है ना आपने जो सुनी है ना रिसेंटली, वो बाद में, पहले अभी जो हमने सुनाई है नहीं इसके सर, बारे में मैं बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी सी आपसे वो सुने एक- तो वो सुने जी तो सर। सुने तो ਉਹ ਸੁਨੇ ਤੋਂ ਯਾਰ जी सर। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ अपनी पाई है, कुछ सुनते लवो। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो से आप मुत्तफिक हैं मिर्जा जूनियर जेलमी के इस्लाम को आप मानते हैं कि बिल्कुल भी जिस नहीं, इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तौहीद है, तो बस ठीक हो गया। फिर आप काल ना करें यार, मुसलमान लोग तो काल ना करें ना, जो इससे गैर मुत्तफिक हैं, जो मुत्तफिक हैं वो काल करें हमें। जी जी बड़ी मेहरबानी अरबाज साहब। अगला बंदा मरज़ई चुको भाई। आओ भाई आओ, मरज़इयो आओ। नानी भट्ट साहब हैं जनाब। वालेकुम सलाम जी नानी भट्ट साहब। मोहतरम सुनाओ क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है जी। भट्ट साहब है कवे मिर्जा जूनियर जेलमी एक इस्लाम पेश कर रहे हैं, वो इस्लाम है वे कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਹੈ। ओके जी जी ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? सर मैंने मतलब की है मौलाना साहब, मेरे इलम से नहीं है। सेक्स किस मकसद वास्ते किया जाना है और शादी मतलब बात चो नानी साहब भट्ट साहब गुजारे ये है, पहले तो ये बता दें कि इस किस्म के इस्लाम को आप कबूल करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं? नहीं जी मैं नहीं जे मंदा इंज दे इस्लाम नूं। जी इसे गल ने मैं जवाब दे रहे हैं मौलाना साहब आप नहीं, सबसे पहले हाँ और ना चलेगी। सबसे पहले हाँ ना, आप इस ऐसे इस्लाम को कबूल करते हैं? चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप सिर्फ उस चीज का नहीं अभी नहीं यार, देखिए आप उलझेंगे तो आपको फिर काल से नीचे उतार दिया जाएगा। साहब मैं आपसे मेरे सवाल का जवाब दें कि आप मिर्जा जूनियर साहब जेलमी के इस्लाम को कबूल करते हैं कि नहीं, कि जिसके अंदर सबसे पहले तौहीद है उसके बाद सेक्स है? वही मैं भी आपसे कहने लगा हूँ कि आप एक चीज का मुझे जवाब दे दें कि मैं जवाब नहीं देना आपका, अभी तो मेरा सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, मैं क्यों आपके सवाल का जवाब दूं? मैं वही जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपका सवाल क्या है, मैं आपसे तफसीलन बात करना चाहता हूँ ना, मैं आपको उस चीज की तफसील मिर्जा बताना जूनियर चाहता हूँ जेलमी के आप इस्लाम को कबूल करते हैं कि नहीं? लेकिन जो उसने बात की है मिर्जा जूनियर जेलमी के इस्लाम को आपको कबूल है कि नहीं? अगला कोई बात नहीं, हाँ या ना करने, अगली बातें बाद में, ये शादी किस लिए जरूरी करार दी गई है? अगली बातें बाद में, अगली बातें बाद में। ये शादी मिर्जा जूनियर जेलमी का इस्लाम आपको कबूल है कि नहीं? बिल्कुल 100% कबूल है। कबूल है, बस बस। अब सुनिए, अब वो जो कहता है ना कि भाई मेरा जो इस्लाम है उसके अंदर तौहीद के बाद सेक्स है, अब वो सेक्स की अब तालीम देने लगा है, ये जरा सुनिएगा। लेकिन एक मिनट मौलाना साहब, नहीं सुनो, चुप करके जे सुनो, जरा सेक्स में ओदा इस्लाम सुनो, इस्लाम की है, चुप करके हो ना, ठंडी पा लो, इधर ना माइक म्यूट करो भाई, ठंडे होके भाई, ठंडे होके सुनो। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15
वो कह रहा है कि जो सेक्स है ना, जो मैं इस्लाम पेश कर रहा हूँ उसके अंदर तौहीद के बाद सेक्स आती है। और सेक्स ये है कि मैं ये नहीं कहता कि 3-4 साल के बच्चे को ही आप लोग सेक्स सिखाना शुरू कर दें, नहीं, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए। लड़की 7-8 साल की हो जाए तो उसको सेक्स सिखाओ कि किंज गेम पाई रही है, तो ਜਦੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਫਿਰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਜ ਕੁੜੀ ਪਟਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਤੰਬੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਜ ਲਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅੱਛਾ आगे ज़रा सुनिए। 15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? शुरू करते हैं। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। ਫੌਰੀ ਭਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 2 ਕਿ 3, ਤੇ 3 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ 2 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਨਾਨੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके, हाँ, कहता है बच्चों के बैग के अंदर, बच्चों के यानी लड़कों के बैगों के अंदर रुमाल डालें। ठीक है जी, रुमाल डाल के उन्होंने इंज करके भेजो फिर स्कूले, क्योंकि इत्थे लोड़ पैंदी है। राह च कुड़ियां छुड़ियां भी आउंदियां ने ना, ते एवें टांगियां दे पिछे ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅਗਰ ਤੂੰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲੋੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁਮਾਲ ਸੁੱਟੋ, ਕੋਈ 2-4 ਹੈ ਵੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨੱਕ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, 2-4 ਰੁਮਾਲ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ ਜੇ, ਨੇੜੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜੇ। भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स, उनके 1 या 2 पैड रख के। हाँ, तो बच्चियाँ जड़ियाँ होंगियाँ 1 पैड या 2 पैड वो उनके बैग के अंदर रख के ऐसे उनको भेजें, एजुकेट करें, एजुकेट, समझ आई कि नहीं। अच्छा, एक सवाल भी जे नानी भट्ट साहब, 1 पैड तो चलो समझ आंदा है, तो दूजा पैड का दे आसे भाई, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ। ਆਹੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨਲ ਸੈਕਸ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਆਸੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਆਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੈਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। बच्चियों के, और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे, अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ 1 ਆਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ 2 ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ 3 आ जाए तो फिर भी परेशान ना हुई। ऐसा मामला, बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं, बच्चियाँ परेशान। इनू कितनी फिक्र है मरदइयां दियां बच्चियां दी, हैं बड़ी फिक्र पै गई इनू बच्चियां दी, मरदइयां दी बच्चियां दी। सुनो ज़रा इस्लाम, तुहाडा इस्लाम, मरदइयां दा इस्लाम। बच्चियों के, और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे, अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। के बच्चियों के, और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। बच्चियों के, और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। जारी। और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। जारी। और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। मर्दाने परेशान नहीं होना, मर्दाने
परेशान बेचारी बच्चियों बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ सारी बच्चियों के ऊपर क्या परेशान नहीं होना, सारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो वो तेरी है जब पहली दफ़ा उसके साथ हुआ था तो क्या तमाशा लगा था। आई जे कि नहीं चस नानी भट्ट साहब भी ना अंदर खाने हसदे जे पे हैं जो पहली वारी होया सी तो कितना तमाशा लगा सी है। मज़ा नहीं आया फिर नेड़े होवो मरजाइयो आ जाओ सारे रल के आ जाओ कितना फिर मज़ा आया फिर है पहली वार जो होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇਹ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਨੱਥ ਖਲਾਈ ਨੱਥ ਖਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਉਹ ਨੱਥ ਖਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੜੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगे फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੱਜੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਹ ਰੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਂਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਰੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਟਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹ ਪੈਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2 ਪੈਡ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ ਮਰ ਜਾਈਓ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਲੰਮੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਲੰਮੇ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ सुनो जरा मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की तो मेरी ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਰੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ 13 ਤੇ 5 18 ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਜੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਓ ਮਰਜ਼ਈਓ ਇਹ ਵੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਜਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਯਕੀਨ ਜਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਭਾਈ। मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट क्योंकि वो ऑलमोस्ट मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट क्योंकि वो मतलब वो आके ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया आज इसके साथ हो गया तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं उनको तो पता ही नहीं। हाय ओए हाय अल्लाह जी पूरी दिन रोंदी रहंदी क्यों रोंदी रहंदी है मर जे रजो भी रोई सी कि नहीं। ਅੱਛਾ ਰੱਜੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਰੱਜੋ ਰੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਜੋ ਵੀ ਰੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਖੋਚਲ वो आके ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया आज इसके साथ हो गया तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं उनको तो पता ही नहीं कि यही मामलात हो गए तो वो फिर उसने उसको एजुकेट ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਓਏ ਬੰਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਓਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਸਨ। सारा कुछ सिलसिला फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें सेक्स हेलो जी रजो ਨੂੰ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਵਾ ਛੜਿਆ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ अंडरवेयर यूज करें सेक्स फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें सेक्स फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें सेक्स फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾਨੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਭਾਈ ਮਾਈਕ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਜੋ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ 18 ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਰੱਜੋ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼
ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੈਡ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਯਾਰ, 2 ਕੁ ਬੰਡਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਿਫਟ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ रजो वास्ते भेजने ने मैं खसूसी। अगे सुनो। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने? हाँ, ऐसे 12 साल तो बाद तो देनी है ना, देनी है सैक्स की तालीम तो दवो मरजाइयो, खुल के दवो पुत्र। जे तुसी ना दित्ती तो असीं दे देनी है तुहाड़ियां बच्चियां नूं तालीम, समझ आई कि नहीं? इस्लाम रोंदे इस्लाम नूं, किहड़ा इस्लाम लैके घुमदे हो पे, मर जाओ। पोर्नोग्राफी जो रंडी दे बच्चे और जो मैं नवा दल्ले किस्म दे वो कट्ठे होए ने, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी वो आंदा मैं यूनिवर्सिटी बनावांगा सैक्स दी, मैं एक प्लान बनाया हुआ है, मैं यूनिवर्सिटी बनावांगा जिथे बकायदा पोर्नोग्राफी की तरबियत होएगी। कुड़ियां ते मुंडियां नूं मरजाइयां नूं इकट्ठियां करके ना वो फिर दसां करांगा मैं किंज सैक्स करी करवाई दे। दिन है। मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड कराऊं, ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। ये वाली एजुकेशन जरूर दे दी जाए। यानी मुझे अपनी बालिग होने की उम्र भी याद है, 26 मई 1992 जिदन मिर्जा कादियानी लठीन च मरिया सी ना 26 मई नूं, उदन वो जिहड़ा वे ना वो बालग होया था जे। अच्छा चलो जी अगे नुमान साहब गल कर लें। जी शब्द मैं यही इन्ना सोचना चाहिए मिर्जाइयां नूं कि जिहड़ा अपनी धी नूं नहीं छड्डण दिया हैगा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਗਾ? जी जी जी। इश्क ज़ादे कौन है जनाब? इश्क ज़ादे साहब कौन है जनाब? ये अल्हम्दुलिल्लाह जी जनाब। जी मेरा एक सवाल था, सवाल कर सकते हैं? जी सवाल तो नहीं हम किसी के ले रहे, अच्छा सवालों के जवाब चाहिए इतने। देखें 50 के करीब हमारे सवाल अभी हो गए हैं, किसी एक सवाल का जवाब हमें मिला ही नहीं है। जी ठीक हो गया सर जी। मैं काफ़ी देर से गुफ्तगू सुन रहा था आपकी, तो कहना यही चाहता था कि अल्लाह और उसके रसूल फरमा रहे हैं कि जो भी दीन इस्लाम है, अगर कोई काफिर भी है तो वो हमारा बिहेवियर देखे हमारे दीन इस्लाम में आना चाहिए। यहाँ पे सारे लोग, ये कौन सी हदीस है? ये कौन सी हदीस है अल्लाह के नबी ने ये फरमाया हो? नहीं मैं बता रहा हूँ, दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए नहीं, वो ही आप जो अभी हदीस बताई है आपने कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। मैं कोई ना मुफ्ती हूँ ना आलम हूँ। ओ भाई आप गप्पे क्यों आप लोग मारते हैं? मुझे ये नहीं एक समझ आती। अल्लाह के नबी फरमाते मन काज़ाबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरह झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। क्यों जन्नमी बनते हो आप लोग यार? अल्लाह के नबी की तरफ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया। पहले भी एक बंदा आया उन्हें भी इंज ही काम किया है तो लभन गया अजे तक नहीं जो बढ़िया। क्यों तुसी मैंने गलत हदीसां पेश कर दे हो? फिर अगों कहना जी मैं मुफ्ती ते आलिम नहीं है। फर्ज करें एक काफिर बंदा आपकी लाइव पे बैठा है, कमाल करते हैं आप। अल्लाह के नबी के ऊपर आप झूठ बांध रहे हैं और ऊपर से मैं हवाला पूछ रहा हूँ तो आप मुझे फिलासफी सुना रहे हैं। कमाल करते हैं आप। नहीं तौबा नहीं की आपने अभी तक, तौबा नहीं की कि भाई मुझसे गलती हो गई है। भाई मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो।
झूठी हदीसें आप लोग पेश करते हैं। मिर्जा सीनियर भी यही काम करता है, मिर्जा जूनियर जेलमी भी यही काम करता है। और दफा करो उनको, दफा करो मिर्जा जेलवी को दफा करो। उसने अपनी कब्र में जाके हिसाब देना है, हमने अपनी में देना है, आपने अपनी में देना है। अपना हिसाब किताब दियो कि भाई आपका जो बिहेवियर है और अल्लाह आपकी के नबी के ऊपर आपने क्यों अभी झूठ बोला? क्या आपने झूठ अपनी बोला कब्र में मैंने? नहीं जाना। अभी आपने हदीस पेश की है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि इस्लाम इस तरीके से पता नहीं पेश करो कि लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਹੜੀ नहीं नहीं तुझे केड़ा तरीका इख्तियार करना है कि दूजे लोग मुतासर होन? अगर दूजे लोग मुतासर होन तो वो इस्लाम कबूल करो, नो केड़ा तरीका है? हदीस पहले भाई मेरे भाई ऐसे नहीं उलझना नहीं है, नहीं तो आप फिर मानने के अल्लाह के नबी ने सच फरमाया कि जो मेरी तरह झूठ की निस्बत करता है उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। झूठ की निस्बत नहीं है, आपकी दुकानें चल रही हैं, आप कितनी देर से किसी और हदीस दिखाइए, कौन सी हदीस है, कहाँ लिखा है? नहीं आप मिंबर रसूल पे बैठ के ये सेक्स की बातें और ऑडियो वीडियो कॉल चला के बैठा हुआ और कुर्सी जो है मिंबर रसूल की तो घूमन वाली कुर्सी जो है देखो घूमन वाली कुर्सी है। आप छिछोरे पान की बातें कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए ये हदीस की तरह है, गप्पा ना मैनू सुनाओ, हदीस सुनाओ। नहीं ਤੁਸੀਂ 2 घंटे तो जड़ा लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर रहे हो? अभी आपने जो हदीस मुझे फरमाई है जी वो हदीस दिखाएं जल्दी करें, नहीं तो अल्लाह के नबी के फरमान के तहत आप चलनी है, आप जलनी है मेरे भाई। किधर बोला है कि मेरे भाई अभी आपने फरमाया, अभी आपने फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरे को ये बता दें आपके इस्लाम में दूसरा बंदा किस माइक थोड़ा नजदीक कर लीजिएगा उस्ताद जी, माइक थोड़ा सा नजदीक कर लीजिएगा। जी 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 तो फिर हदीस निकालिए, कहाँ पे है ये? जनाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई काफिर बंदा हो, अगर वो मुझे हदीस सबसे पहले, अगले काम बाद में आप या तो आप माफी मांगिए, या आप माफी मांगिए कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने गलत हदीस पेश की है, या तो आप माफी मांगिए या हदीस का हवाला दे। बात पेश की है, मेरे को ये बताओ कि आपको देख के कोई बंदा दीन इस्लाम कबूल कर सकता है? जी काशिफ इन्होंने ये हदीस पेश की है कि नहीं? ये कह रहे हैं जी किधर पेश की? ऐसे ही कहा उस्ताद ने मोहतरम, बिल्कुल ऐसे ही कहा। इन्होंने हदीस का हवाला नहीं दे रही है लेकिन मुंह से बोल रहे थे ये जी कि वो नबी पाक ने ऐसे फरमाया है। नुमान साहब इन्होंने क्या कहा था? ये अभी मुकर ही गए हैं कि नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा। नुमान साहब बताइएगा। जी जी बिल्कुल इन्होंने ये ऐसे ही कहा है जी। मैंने ये कहा है कि असद यकीन उस्मान जरा दस्यो जे बिल्कुल शाह जी, इसने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे तबलीग करो कि तुम देख के सारे तुम लोगों की तरफ। अब देखे इतनी गवाहियां मिल गई हैं, नीचे भी कमेंट भी लोग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे? और आप या तो तौबा कर ले मेरे भाई, ये अल्लाह की नबी की हदीस का मसला है, या तो तौबा कर लो नहीं तो जन्मी हो जाओगे, या मतलब ये कि हवाला दे दो। मेरे अल्फाज के चुनाव में गलती हुई है तो मैं माजरत करता हूँ। अगर मेरे अल्फाज के चुनाव में गलती हुई है, अल्फाज के चुनाव की बात नहीं कर रहे, हदीस बयान करने की चुनाव की बात कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, मेरे से अगर वो गलत बयानी हुई है तो मैं माजरत करता हूँ, तौबा करता हूँ। नहीं अगर मगर शैतान का रास्ता खोल देता है, ये मिर्जा जूनियर जेल में कहता है, वो कहता है अगर मगर जो होता है ना ये शैतान का रास्ता खोलता है, वो शैतान का रास्ता नहीं खोलना। शैतान अगर नहीं, आपने ये गलती की है, आप कहें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अगर नहीं, अगर को बीच में से निकाल लें। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हुई है, मैं माजरत करता हूँ, तौबा करता हूँ, ठीक हो गया। अल्लाह आपकी आप मुझे ये बताएं कि जी, आप मुझे ये बताएं कि दीन इस्लाम में लाने के लिए अगर कोई काफिर बंदा हो तो क्या आप ये जो गुफ्तगू अगर काफिर नहीं मिर्जा जूनियर जेल में काफिर, वो तो काफिर है भाई। ये कहें कि मिर्जा जूनियर जेल में काफिरों को आप इस्लाम में लाने के लिए ये कहें, आप अगर को बीच में डाल देते हैं यार वो शैतान वाला रास्ता। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुसलमान और काफिर में फर्क क्या है? अच्छा मिर्जा जूनियर जेल में काफिरों को इस्लाम में लाने के लिए क्या करना चाहिए? आगे कुछ कहने लगे थे आप मिर्जा के टॉपिक के बगैर और कोई बात भी है? और कोई टॉपिक है ही नहीं हमारा, कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। अच्छा फर्ज करें मिर्जा जूनियर जेल में पे अभी बात हम कर रहे हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाला कैसे काफिर हो सकता है? मेरे को ये बताओ। वो जनाब जिस तरीके से काफिर हो गया मुसैलमा कज़्ज़ाब, नहीं तरीके को छोड़ें, जब वो नबी का कलमा पढ़ता है, सारे कलमे पढ़ते थे, सारे कलमे पढ़ते थे, काफिर सुन्नी बोल रहे हैं। असवद अंसी भी कलमा पढ़ता था, वो काफिर कैसे हुआ?
बताइए हुन की हो गया जे? ओ बताइए जनाब, किधर टुर गए? इसकी जाने बला असवद अंसी कौन था? इसकी जाने बला काब बिन अशरफ भी कलमा पढ़ता था, वो कैसे हो गया जी काफर? किथे टुर गए हो ना? बहाउल्लाह ईरानी भी कलमे पढ़ता था, दाढ़ी भी रखी थी उसने, नमाजें भी पढ़ता था, सब कुछ करता। कर रहा है, उतार दे इसको। अगले बंदे लो भाई साइडा ते कर दो। सच्चियां गल्लां पुत्तर सुनोगे तो इंज ही होएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਪਿਕ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੌਜੂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਬਰਾੜ ਕਰਨੀ ਮੌਜੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਜੋ ਦੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਆਏ ਜਨਾਬ? ਜੀ ਹੈਲੋ, ਲਾ ਦਿਓ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋ। आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाह। दो तीन बातें करना चाहता हूँ, अगर आपको मैं हौसला हो सुनने का तो तब करता हूँ। नहीं आप ना करें, हौसला नहीं है हमें। जाओ बंद करो ऐसे। देखो ये हमारी बच्चियां बैठी हैं, आपकी बच्चियां अंडरवेयर हुई है। कुछ बंदे को होना चाहिए यार। वो जो कर रहा है वो जो कह रहा है उसको कुछ नहीं कहना आपने। उसको क्यों छोड़ दे? वो अपनी रज्जो के अंडरवेयर के साइज बता रहा है, वो अपनी रज्जो को वो पैम्पर पहनवा रहा है, वो जो होती है वो क्या उसका नाम है, मैं अंदर की वो चीज़ें हैं वो सारी दुनिया के सामने तस्करे कर रहा है, उसको कुछ नहीं कहना। हम उसकी चीज़ों को आगे पेश करें तो मलामत आप लोग हमें करेंगे। वाह भाई वाह, बल्ले भाई बल्ले। हाँ जी, अली भाई जो सैक्स की तलीम आम कर रहे हैं और सैक्स एजुकेशन ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਰੱਜੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 18 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਜ਼। ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਲਵੋ ਭਾਈ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਨੀ ਰੱਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਵਾ ਛੜੇ। ਨੀ ਰੱਜੋ ਦੱਸ ਨੀ ਰੱਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਏ ਰੱਜੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਏ ਮੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਟਨ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਕਾਰਟਨ ਪੂਰਾ ਕਾਰਟਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਾਈਦਾ ਕੀ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਡ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਰੱਜੋ ਨੀ ਰੱਜੋ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਜੋ, ਅੱਬਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਚਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਚਸਕੇ। ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦਈ ਲਿਆਓ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਮਰਦਈਓ। ਹੁਣ ਬੋਲਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਮਰਦਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਲਾ ਲਿੱਤਰ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਏ ਅੱਗੇ।
ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਜੋ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ ਮਰਜ਼ਈ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਕਰੀਆਂ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਥੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਜ਼ ਪੁੱਛਣ। ਸੈਜ਼ ਪੁੱਛਣ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਸ਼ਫ ਦੀ, ਫਿਰ ਨੁਮਾਨ, ਤੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਓ ਲੰਮੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਲਵੋ ਲਵੋ ਲਵੋ। उस्मान तेरी बारी। हाँ जी वालेकुम सलाम जी जनाब करें बात। यार ये शाहजी पूछ रहे हैं कि जनाब ये रज्जो का, हाँ जी यार हम इधर बैठे पूछ रहे हैं कि ये जो सेक्स की तालीम दे रहा है, तो पूछना यही है कि जनाब उस वक़्त रज्जो का साइज़ क्या था और सेक्स एजुकेशन कैसे उसने दी है। ये तो नहीं ना उसने बताया कि जनाब ये वाला साइज़, इस साइज़ की लड़की को जनाब पहनाना है। मैंने भी उसने बताया नहीं है कि मैंने अपनी बेटी को ये साइज़ पहनाया था। तो आप बताएंगे? सवाल थोड़ा शॉर्ट करें, इतनी देर में वो मार देते हैं, रिपोर्ट मार देते हैं। जी सनाउल्लाह साहब करें बात। क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत, तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, नहीं बल्कि ठीक नहीं, उनते बड़ी खराब होगी, उनते तबीयत सही कराओ ना, डॉक्टर के पास जाओ, प्रोफेसर के पास जाओ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਆਏ हैं ना, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸ नहीं रहा ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੋ जी। और ये कहना है कि सेक्स एजुकेशन मैंने जो है ना, मैंने सुना था ना, जो शैतान है ना, शैतान वो जब मौली को गुमराह कर लेता है ना, हाफिज को गुमराह कर लेता है ना, उस दिन वो बहुत बड़ा जश्न मनाता है। आप लोगों को उसने गुमराह कर ये सवाल अंदर घुस के वो जश्न मना रहे हैं। बोलने दे। आपके देखो मुंह के ऊपर सुन्नत नबवी है, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, कैसी कैसी फिरका फारी फैला रहे हो। जनाब देखें, ये जो मिर्जा जूनियर छोकरा, उसने भी दाढ़ी रखी है, वो तो कहता है मैं पगड़ी भी इसलिए पहनता हूँ लोगों को धोखा दूं, तो वो तो जनाब उधर बैठ के सेक्स एजुकेशन दे रहा है, तो उसको किसने गुमराह किया है? उसको भाई किया है? ना मेरा मिर्जाइयों से कुछ है ना किसी से है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, मैं किसी फिरके को नहीं मानता। लेकिन एक मैंने चीज देखी है इधर, जो ये इमाम है, ये बात सुनो, ये इमाम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, इनको इधर बैठ के हदीसें पढ़ानी चाहिए। वो इधर हमें क्या कोर्स पढ़ा रहे हैं सेक्स का? सुनते नहीं, बता रहे। ये देखे यार, देखो जी मेरी बात सुने तहम्मुल के साथ। देखें, आप हमें बुरा भला कह रहे हैं, हम तो उसकी सेक्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए, मर्ज़इयों को खुश होना चाहिए कि जनाब ये हमारी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचा रहे हैं। अब उसने सेक्स एजुकेशन दी है, वो तो कहता है मैं क्लिप भी रिकॉर्ड करवाऊंगा, तो क्लिप सब ने सुनना है, शर्म कोई नहीं करनी, ठीक है मर्ज़इयों। तो अब आप हमें गुस्सा कर रहे हैं, उसको आप कुछ नहीं कह रहे। बताओ ना, ये जो उसने सेक्स एजुकेशन दी है, माइक अनम्यूट करो, तो इसके बारे में थोड़ी बताओ हमें। जो आता है हमें क्या इसने दसे उस्मान है, दसेगा ही दसेगा। हाँ जी ठीक है शाह जी, यही दसे ਲੈ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸੈਦ ਲਿਖਵਾਈ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ कि 10 रिपोर्ट कर रहा है यार, रिपोर्ट कर रहा है। बुढ़ी को लितर खाएगा जी, इन्हें पक्की ठान ली लितर खान दी। यार मेरा मरज़ई यार चुप कर गया। नवा कलर लै ते हुण काशा दी वारी है भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। LA सबसे पहले जी सबसे पहले LA क्या होता है भाई? वो एक मिनट यार, सब तो पहले एक मिनट खलो, LA का क्या मतलब है? बस वैसे ही लिखा हुआ है मैंने। तो वैसे ही मतलब को मतलब तो होगा ना, क्या नाम है आपका? कुछ भी नहीं है।
नाम आपका कुछ नहीं है? नाम वजह है मेरा, लेकिन LA वैसे भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम असल वजह है। सॉरी? वजह वजह एथियस एथियस। जी। अच्छा, अच्छा एथियस। आप एथियस्ट हैं? पहले सर जी आप बात तो सुन लेना, जिस बात पे नहीं, पहले मैं यार मैं भी तो सवाल कर रहा हूँ ना, मेरी क्यों नहीं सुन रहे तुम? जी जी बोले। आप एथियस्ट हैं? नहीं मैं एथियस्ट नहीं। क्या हैं आप, मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्जा जूनियर जेलमी के बारे में क्या राय रखते हैं आप? सर मैं सबसे पहले यही चीज कहने यार सबसे पहले, फिर सबसे पहले सर आप बोलने ही नहीं देते तो मैं क्या बोलूं? तो भाई मेरे 2-3 सवाल है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप बोलते रहना मुसलसल। देखें आपने सवाल रख लिया, अभी मेरे से सुने। मिर्जा जूनियर जेलमी के बारे में आपकी क्या राय है? मैं कादियानी पे लानत भेजता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से मेरा तल्लक है, लेकिन आज मुझे वो चीज याद आ रही है कि उम्दा मिर्जा जूनियर जेलमी से क्या मिर्जा जूनियर जेलमी के बारे में बात हो रही है, उसका बताएं कि उसके बारे में आपका क्या? तुम्हें इस्लाम के नाम पे मिर्जा जूनियर जेलमी की बात करो, मिर्जा जूनियर जेलमी की। यार ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, अकेले बोलते रहो। तुमसे ज्यादा ऊंचा मैं बोल लूंगा और बोलने में नहीं दूंगा तुम्हें। मैं तुमसे ज्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ। मिर्जा जूनियर जेलमी के बारे में क्या राय रखते हो? अभी तो मैंने आगे सवाल करना है रज्जो बेगम के बारे में। क्या रज्जो बेगम तो नहीं कह सकते, खैर रज्जो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बोलो ना जरा, माइक अनम्यूट करके मेरे 2 सवालों के जवाब दो। तुमसे ऊंचा मैं बोल सकता हूँ, बात नहीं करने दूंगा आगे। चलो शाबाश। और चलो, बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो ना अब। LA नाम रख के इस तरह आया था जैसे पुराने जमाने में लोग अपने नाम के साथ लिखते थे ना, लोग पहले अपने नाम के साथ लिखते थे MA MMBBS MA LA रख के। मिर्जा जूनियर की बात करो, मिर्जा जूनियर की। मिर्जा जूनियर 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 मिर्जा जूनियर। मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं नहीं बोलने दूंगा। मिर्जा जूनियर का बताओ, 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 मिर्जा जूनियर, मिर्जा जूनियर, मिर्जा जूनियर, मिर्जा जूनियर, मिर्जा जूनियर। नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा। चल चल शाबाश, चल चल निकल यहाँ से, चल चल, तेरी ऐसी की तैसी, भाग यहाँ से। कितने यार तुम्हारा इस्लाम एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा चल, तेरी ऐसी की तैसी, चल। तो तेरा बाप ही बता रहा है ना, वो तेरा बाप ही बता रहा है ना, मिर्जा जूनियर ही बता रहा है। इतने स्टूडेंट सामने रख के बता रहा है तेरा बाप इतने स्टूडेंट्स को सामने बिठा के इतनी किताबें बुखारी सामने रख के बता रहा है तेरा बाप। उसको शर्म नहीं आई? बेगैरत कहीं का। देखे सिंपल मर्दैयो सवाल पूछ रहे हैं कि यार मिर्जा इंजीनियर के बारे में पहले अपनी राय दे दो, ताकि जो ब्रॉड हमने चलाई हुई है उसका मकसद तो आप समझो, उसका पैटर्न तो आप समझो, मौजू तो आप समझो। एक बार बता दो कि हाँ भाई मैं मिर्जा इंजीनियर की इस बात को की तायद करता हूँ, मैं उसको अच्छा समझता हूँ, बात ख़त्म। फिर आगे से बंदा बात करने वाला बनता है ना। ये क्या आके आपने अपनी मशीन चला दी है, अपना रट्टा इधर शुरू कर दिया है कि मैंने जो रट्टा लगाया हुआ वो मैं लगा के भाग जाऊँ बस। नुमान शाह जी वैसे शाह जी मेरी जी शाह जी वैसे शाह जी मेरी बनती है गल। यार गल सुन लो यार, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ करना, लेकिन नुमान ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਧਰ ਆ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਰੱਜੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੇ नुमान ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ ਸੈਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਉਹਨੇ शाह जी, ਪੂਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰੱਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ नुमान ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਆ। शाह जी रज्जो ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਨੇ ਆ ਟਾਕਰਾ, ਮਰਜ਼ਈ ਬੜਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਬਦੁਲ शकूर। जी अस्सलाम वालेकुम। नुमान भाई ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। जी भाईजान, मैंने कमेंट किया है नीचे कि
जो आज तक चारों फिरके एक दूसरे को काफिर जी अब्दुल कहते हैं। शकूर साहब, पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या हैं, मिर्जा जेलमी को आप क्या मानते हैं? मैं अहले हदीस हूँ भाईजान। अच्छा, मिर्जा जेलमी के बारे में क्या ख्याल है? मैं उसके बारे में ये जानता हूँ कि उस बंदे ने इन चारों फिरकों की मंजी ठोकी है। वो गलत है, वो गंदा है, वो बुरा है, वो मरज़ई है, वो जहन्नमी है। अच्छा, कहते हैं बुरी, कहते हैं अच्छी बात अच्छा मेरी किसी बात सुने अभी। अच्छी बात अभी उसने किसी ये गैर बयान मुस्लिम दिया की है मैंने अच्छी कि बात नहीं देखो। मेरी बात शैतान ने सुने भी ना, शैतान अभी ने जो भी इसने कहा ये बयान दिया है सेक्स के शैतान बारे है। में कि तौहीद के बाद मुझे सेक्स मैं बहुत तो कह पसंद रहा है, हूँ, मेरी बात तो सुने, मैं कह रहा हूँ वो गलत है, वो गंदा है, वो और जो बुरा के है। बारे में भी उसने अपनी बेटी के बारे में भी बताया है। नहीं नहीं, एक मौकफ रखना, ये दो मुंह बांध के आना रहे। एक तो आप कह रहे हैं कि मैं अहले हदीस हूँ, फिर उसके बारे में आप जो है उसकी हिमायत भी कर रहे हैं। तमाम फिक्र जो है उसके खिलाफ है, जितने भी मकातबे फिक्र इस्लाम के वो उसके खिलाफ है। अपना माइक अनम्यूट करें जनाब, आप पहले हदीस हैं, फिरकों की कहता है जो उसने मंजी ठोक दी है, लेकिन वो आपको जनाब बेटी या जो आपकी बेटी है ना उसको सेक्स एजुकेशन भी जनाब दे रहे हैं। बड़ी मंजी ठोकी है वो, आपकी बेटी की मंजी ठोक दी उसने। माइक अनम्यूट करके अपनी जो मंजी ठुकवाई है ना अपनी अम्मी से पूछ के आना। प्यारे भाई मेरी बात सुने, चले देखिए नुमान भाई, बात जब तक आप दलील से बात नहीं करेंगे तो कैसे आप बहस करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जी कि मतलब तमीज में बदतमीजी कौन सी है? उसने जो बात की है वही आपसे कर रहे हैं वो कि उसने ये जो बात की है सेक्स के बारे में, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपको कसम खा के कहूँ कि मैं उसका मानने वाला नहीं हूँ, मैं उसका फॉलोवर नहीं हूँ, मैं उसका बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा अकीदा अहले हदीस है, लेकिन मैं आज तक ये सवाल पूछता हूँ कि चारों फिरकों ने आज तक एक दूसरे को काफिर नहीं कहा, तो मुझे बताओ। पूरी अच्छी बात तो आपको किसी गैर भाईजान मुस्लिम से अहले मिलती हदीस है, तो आपको लेनी चाहिए। उसकी अच्छी बातें जो है जो इन लोगों ने चारों मसलक ने आज तक एक दूसरे को नुकसान, वहाबी ने कहा सुन्नी मुशरक, शिया ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदी ने कहा शिया काफिर, नहीं, तो चारों ने जो वो कितना सेक्स एजुकेशन की तालीम दे रहा है वो कहता है कि मुझे तौहीद के बाद सेक्स बहुत पसंद है। मैं कहता हूँ बगैरत है, वो ये ऐसा गंदा दीन आपको जलील है, कबूल है? कुत्ता है। मैं तो कह रहा हूँ गुंदा कुत्ता जलील बगैरत, लानत भेजो बेशुमार। मैं आपके साथ हूँ नहीं हर यार, बात उधर से आप पे। कह भी मैं रहे हैं बात और कर रहा उधर हूँ, से उसके मौका की तईद भी कर रहे हैं। नहीं, क्या उसके बात है? मौकों की नहीं, उसके मौकों की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आज तक चारों फिरकों ने एक दूसरे को कितना इस्लाम का नुकसान किया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ तो आप लानत सामने भेजे ना उस पे, उसको कहें कि वो काफिर है, वो लानत जलील है, काफिर वो है, मुर्तद है। वो जलील है। मैं आपके साथ हूँ, आपके हर बात के साथ। लो जी, वो ठीक हो लानत है, गया, ठीक काफिर है, हो गया। लेकिन जो मेरा सवाल है उसका जवाब लो जी, सारे अच्छा ठीक सारे हो गया, मिलकर बस ठीक देंगे। हो गया, आपको मौका पहुंच गया है। भाईजान हाँ जो मैंने जी, सवाल किया उसका अच्छा जवाब तो सारे मिलकर देंगे ना। अगले कॉलर को लें भाई, जी, सारे ठीक हो मिलके गया। उसका जवाब देंगे। अगले कॉलर को लें। अब्दुल यार अब्दुल बात सुने शकूर एक मिनट यार, उस्मान मुझे कहने की जरूरत क्यों पेश आती है? एक बंदा ना ही 3 च ना ही 13 च एंदे बंदे नु ते इत्थे लवो ही ना आना जी। दस्ती अच्छा वो दस्ती कह उस्ताद रहा जी, था दस्ती दस्ती। वो काफर वो जी उसने जनाब फलां फलां को ऐसे कह अच्छा दिया, नाले फलां को ऐसे कह दिया। नुमान इंज नहीं भाई, इंज नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਹੋ। अस्सलामुअलैकुम। ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਕੋਈ 5000 ਕਿਲੋਮੀटर फी घंटा जी ਦੀ जी मौलवी रफ्तार। साहब स्पीड मारते हैं, आ जाओ। उस्मान शुरू हो जा भाई। जी जी केड़ा जी करना जनाब, चाहिए? जी शाह जी, जनाब, ऐसा ऐसा हो जाएगा। कुरैशी साहब वो जी नीचे जी भी बड़ा आपकी गलत मैंने कीता जी पढ़ी, मेरे बार बार आप कह रहे हैं काल पे आना है, काल पे आना जी है। जी मैं काल तो ही कह रहा था, मिर्जे ने जी बड़ा गलत कीता। तो ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਘੰਟਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੋ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। मैं घंटा हो गया ਤਾਂ मैं कह रहा था मिर्जे ने वाकई गलत किया, उन्हें क्या गलत चीजां या म्यूट नहीं लाना। सुनो मेरी गल करनी तू करो, सुनो भी हुन जरा बैठ। अच्छा हुन मैं मेरी घंटा को सुनया सर मुफ्ती ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੈਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸੁਣੋ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਯੰਦਣਾ ਖੋਤੀ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗਮ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਐਸੀ ਕੁੱਤਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ। ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਲੰਨ।
دیکھے جی اس کے پاس مرزا جونیئر چھوکرے کا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس نے کہہ دیا کہ دیکھو جی مدرسوں میں بھی تو ہوتا ہے نا، دیکھو کون سا عالم ہے جو مذمت نہیں کرتا پھر اس کی ملامت نہیں کرتا، لعنت نہیں بھیجتا۔ تم لوگوں نے لعنت بھیجی ہے اور تم تو وڑتے ہو، کہتے نہیں جی میں اس کی اچھی اچھی باتیں لینی ہیں، تم لوگوں نے لعنت ڈالی ہے۔ مردئیو آتے ہو نئے نئے طریقے سے، تو جناب نئے نئے طریقے سے ہم عام لوگوں کی منجی بھی ٹھوکیں گے نئے نئے طریقے سے۔ یہ جو تم لوگ سیکس ایجوکیشن پروموٹ کر رہے ہو نا، تم لوگوں کی ساری سیکس ایجوکیشن تمہاری وہ دے دیں گے واپس رجو کو۔ جی جی کاشف ہوں تیری باری ہے بھائی۔ اب مسیح ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، مسیح سرسوم تو ٹر جا، تیرا مائک کوئی نہیں ہے تے ایویں تو ویلا ہی بیٹھا ہے۔ السلام علیکم جی، کاشف گل کر بھائی یہ نال۔ جی شاہ صاحب سارے بھراواں نوں سلام بہت بہت تے اللہ خوش رکھے۔ میں مکہ تو بول رہا ماجد، ٹھیک ہے؟ اچھا ماجد بھائی ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی جی، بیسکلی میں ٹھیک ہوں جی اللہ کا شکر ہے۔ میں بیسکلی جیلم کا ہوں لیکن ادھر مکہ میں جاب کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال بعد اب یعنی کہ میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، میری نسل میں پوری میں جو ہے نا وہ کوئی غیر مقلد یا کوئی منکر نہیں بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اتنی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ الحمدللہ سارے سنی ہیں، ہماری نسل در نسل جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت سے۔ تو میری ایک مدبانہ ریکویسٹ ہے آپ سے، میں جیلمی پہ وہ مرزا جیلمی پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں ساروں پہ، یعنی کہ جو اس کے پیروکار ہیں جو بھی آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا لہجہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا ریلیکس رکھیں، ٹھنڈا رہے کہ نا بندوں کو سمجھائیں کہ بیسکلی بات کیا ہو رہی ہے، اس پہ آپ بندے کی بات ہی نہیں سن رہے۔ علی صاحب یہ ذرا ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، ہم نے صرف مرزا جونیئر کی نا ویڈیو سنانی ہے، اس کے اوپر آپ ذرا بتائیے گا۔ میں جانتا ہوں پہلے بڑے پیار محبت سے ویڈیو سنیں گے اور اس ویڈیو کے اوپر آپ کاشف بھائی سے بات کریں گے۔ میں ویڈیو پوری سناتا ہوں۔ میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے۔ دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں۔ ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں۔ ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے۔ بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس کے سے اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے، اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا۔ چاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور لڑکے جی شادی میں نے سنی ہے، اس کو میں جانتا ہوں، میرے گھر میں بالکل 5 منٹ کی دوری پہ یہ بندہ اس طریقے سے اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے، اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ تو پریشان نہیں ہونا۔ چاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور لڑکے بھی اسی طریقے سے، میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا، تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہی معاملات ہو گئے ہیں۔ تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ، پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں۔ سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے۔ میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، اب اللہ کرے وہ کبھی دن ہے، میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں، تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں خود شرما رہے ہیں نا، تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ، یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔
दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे बड़ा जी बात कीजिए काशिफ। जी अली हसन भाई, आप जी मैं सिर्फ सिंपल सी बात करूंगा आपसे। हाँ जी कि ये अब इसने खुद ये वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं और सही बुखारी इसके सामने पड़ी होती है, उसने यहाँ बैठ के रिकॉर्ड करवाई हैं। तो बराए मेहरबानी मजीद मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगा, हम उसी की वीडियोस का जवाब दे रहे हैं बस। आप चूंकि मक्का मुकरमा से हैं, मैं आपके साथ जो है ना वो ऊंचा बोलना या कोई बदजुबानी करना नहीं चाहता, सिर्फ ये बता रहा हूँ। मेरी सिर्फ सुनिए आपसे जी मेरी अली आपसे हसन भाई, रिक्वेस्ट है सुनिए मैं ठीक है मान लिया आपकी रिक्वेस्ट, मान ली, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू जी। आप नीचे बैठ के सुनिए आप, जज़ाकल्लाह। उस्मान भाई नेक्स्ट ले लें। देखे ना जी, वो कह रहा है कि पूरी जो है वो मेरी खानदान सुन्नी है। देखे, जब जो खानदान आपका सुन्नी है, आपकी औरतें या आपके बच्चे या आपके जो भी रिश्तेदार है वो ये सुनेंगे तो कितना गुमराह हो गए, कितनी ये बात फैलेगी। इसको रोकने के लिए इल्जामी तौर पर हम इन मर्जियों की मंजी ठोक रहे हैं, आप हमें गलत कह रहे हैं, तो ठुकनी तो है ही है तुम लोगों की मंजी। उस्मान हूँ तेरी बारी भाई। जी मुस्तफ़ा साहब क्या हाल है? जी जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए से शुक्र अल्लाह का। यार आपने नीचे बैठ के सुना होगा सारा कुछ, तो सवाल हमारा सिर्फ यही है कि ये जो मिर्ज़ा जूनियर है यार, ये जो सेक्स एजुकेशन दे रहा है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? भाई बात ये है कि सेक्स एजुकेशन जिस वाले से वो बोल रहा है ना, वो ये नहीं बोल रहा कि हम बिस्तरी कैसे करनी है या आप किसी लड़की के साथ कैसे। वो सेक्स एजुकेशन की अगर आप उसको समझने की कोशिश, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं उसको नहीं मानता। मेरे लिए वो जैसे काफिर है वैसे वो इंसान है। सही है, पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं। और दूसरी बात, जो सेक्स एजुकेशन वो ये बोल रहा है कि फर्ज करें आपकी बेटी है, बहन है, कोई भी है, पहली मर्तबा अगर उसको पीरियड्स आते हैं, वो स्कूल में है, कॉलेज में है, किसी भी जगह पे है, घर वापिस आ रही है रास्ते से, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप क्या उस चीज को जो है वो मोहल्ले में या गली में या कोई भी चार बंदे देखेंगे तो क्या समझेंगे उस चीज को? अच्छा, यानी कि गली मोहल्ले में क्या देखेंगे कि इसकी बेटी को जनाब मिर्ज़ा इंजीनियर की बेटी चली आ रही है तो उसकी पीछे से भी गीली है, आगे से भी गीली है, ये देखेंगे लोग और फिर वो लोग हंसेंगे। तो इसलिए उसको पैड देने चाहिए कि ये चीजें करनी चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? भाई वो ये नहीं बोल रहा कि भाई को देने चाहिए या बाप को, उसने माँ का नाम लिया है और माँ बेटी को वो यार मैं कब कहा है कि बाप, मैं ये कहा है कि आप कहना चाहते हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर की बेटी चली आ रही है तो ये लोग देखेंगे कि अच्छा नहीं लगता कि सामने से भी गीली है पीछे से भी गीली है, उम्र उसकी होगी है 12 साल और गीली है। तो इसलिए माओ को चाहिए कि उसके जो है ना पैड पूड का, सेक्स का जो है ना पूरा ख्याल रखना चाहिए। अब ये सेक्स एजुकेशन में आता है। अच्छा, दूसरा ये बताएं मुझे कि फिर आप ये मानते हैं कि इसके जो इसने लाइव बैठ के पूरी दुनिया के सामने जो इसको औरतें भी सुनती हैं, लाइव बैठ के इसने यो बातें दर पर्दा पीछे करने वाली थी, उनको इसने लाइव कहता है कि अपनी बेटियों को सेक्स एजुकेशन भी दें, ठीक है, और 15 साल की उम्र तक जनाब आप इनको सेक्स एजुकेशन दें ताकि ये कंफ्यूज ना हो। आप इस पर क्या कहते हैं कि ये ठीक इकदाम है इसका? हाँ, यही है कि मतलब ये कि ये बंद कमरों में करने वाली बातें हैं कि जो कि बेटी को एक माँ बताती है, बेटे को एक बाप बताता है, वो भी बंद कमरों में। लेकिन यकीन जाने कि हमने देखा है और इस मुआशरे का ये एक है कि कसम से कि बेटी माँ को बताते हुए शर्माती है, बेटा बाप को बताते हुए शर्माता है। ये है ही शर्मो हया वाले किस्से कहानियाँ, हत्ता कि इतनी शर्मो हया वाले ये मामलात हैं कि बीवी शोहर को नहीं बताती। अच्छा, एक बाप की अगर बेटी है ना या उसकी 2-3 बेटियां हैं तो उसको कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटियां कब कब बालग हुई हैं। वो जो माँ है या उसकी जो बीवी है वो बताती नहीं कि भाई तुम्हारी जो बेटी है वो आज बालग हुई है।
वो बापों को पता ही नहीं होता। ये इतने शर्मोया वाले मामले जो कि बंद कमरों में करने वाले थे वो सरेआम ले है और अपने 1.5 मिलियन या 2 मिलियन लोगों को वो बता रहा है, जिसमें लड़कियां भी शामिल, लड़के भी शामिल, नौजवान भी शामिल, कंवारे भी शामिल, तो शादीशुदा भी शामिल। चलो शादीशुदा को तो ये सारी चीज़ें देखी भाली होती हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं। तो आप बताइए मुझे, एक नौजवान लड़की के जज्बात पे क्या गुजरेगी और एक लड़के के जज्बात पे क्या गुजरेगी जब उसके सामने एक बच्ची के अंडरवेयर का या मतलब उसके हैज़ो निफास और अयाम का जिक्र होगा, या मतलब उसके मतलब इस तरह के सारे मामलात के जिक्र होंगे, उसके जज्बात कैसे मुश्तल होंगे। और वो तो जनाब वो तो अपनी डेट से पहले ही बालग हो जाएगा। जी जनाब, बात करिए आप उस्मान साहब से। अभी आपने जो बात की है ना कि बाप को पता ही नहीं होता था, वो किसी नहीं पता होता था, इसीलिए कि उनको पहले अपने आप को कवर करना, केयर करना आता था कि हाँ ये चीज होगी या ये चीज होने वाली है तो मैं इसको पहले ही कवर कर लूं। वही चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर वो घर पे आती है इस हालत में तो जाहिर बात है जो घर में है, गली में है, मोहल्ले में है, वो सब देखेंगे। सही है, वो इसी चीज को कवर करने के लिए उसने बोला कि माँ जो है कभी कभी एक मिनट यार, एक मिनट उस्मान रुकी जरा यार, कभी आपने इंसाफ से बात करिएगा, कभी आपने पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया दे विच ते ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ और आसमान बने ने, ਜਦੋਂ इंसान बने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके अज तक कदी कोई एक वाकया सुनिया जी इंज दा? ਉਹ ਕਿੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਬੜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਜੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਅਕਲ ਦੇ ਨਹੁੰ ਲਵੋ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। सही है सर, आपका कहाँ चिट्टा हमारा काला, अकल की कमी के साथ बहस नहीं होती। नहीं आपकी सही है, आप कहते हैं कि जनाब ये सेक्स की बातें, इस तरह की बातें सरेआम करो, ठीक है, हमारी बच्चियां भी सुने, हमारे बच्चे भी सुने, तो सुनाओ ना जाके अपनी बच्चियों को, तो हमें भी हमारे भी सवालों का जवाब दो फिर कि वो जो उसको भाई हम आपकी तबलीग को लेके चलते हैं, मिर्जा इंजीनियर को कहो कि भाई वो पैड भी बताए, वो साइज भी बताए और 2 क्यों देने हैं ये भी बताए। वो जनाब पूरा क्लिप जो तुम लोगों ने सेक्स एजुकेशन के ऊपर रिकॉर्ड करवाना था वो भी हमें दिखाए, हम ताकि मर्जियों को आपकी तबलीग आगे तक पहुंचाएं, सेक्स जो है वो आम करें, जो बातें शर्मो हया वाली हैं वो खत्म कर दे। मर्जियों तुम लोगों को अक्ल है, उलमा को नहीं अक्ल है। वो बता रहे हैं कि ये एक शर्मो हया वाले काम है, ये दर पर्दा करने वाले, बैक साइड पे करने वाले, बल्कि बाप को पता तक नहीं। ये माँ जो होती है वो अपनी बेटी को, बेटी जो है आगे अपनी बेटी को ट्रांसफर करती है खुद ही, इतनी शर्मोया आती है। तुम लोगों ने शर्मोया वैसे उतार दिया। वो कहता है ओरल सेक्स जनाब वो चुपा जायज है भाई, बात ही कर रहे हैं ना, चुपा जायज। चुप अभी सुनो, अब हमारी अब सुनो, इतने तुम अक्लमंद। उसने जनाब कहा है कि कुरान और हदीस में चुप्पे की, ओरल सेक्स की कोई ममानियत की रूह से ये ना करो। अब साइंस ने जनाब तरीका भी बता दिया कि कॉन्डम चढ़ा लो फ्लेवर वाले, ठीक है, तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। चुप्पे पे चुपा लगाओ। वो सरेआम उसने 2 मिलियन कहता है, मेरे इसकी वीडियो के फॉलोवर हैं, वो कहते वीडियो देखी है, वो 2 मिलियन में से तुम लोगों की औरतों ने भी देखी है। वो कहता है चुपा जायज है भाइयों, कुरान हदीस में इसकी कोई ममानियत नहीं आई है। तुम लोगों को अक्ल है, हम इधर बैठे तुम लोगों को समझाने, हमें अक्ल नहीं है। जी मुस्तफा साहब देना जवाब, चलो टुर गए हो, इंज तो ना करो यार। चलो यार, साइंस की रूह से अगर ओरल सेक्स मुझके कोई होते हैं जरासीम या वो दांतों में फंस जाते हैं तो कैंसर हो जाता है, ये ठीक है। तो अब तो वो कह रहे हैं भाई वो मुख्तलिफ फ्लेवर वाले कॉन्डम आए हैं, वो चढ़ाओ ऊपर, तो जिन्ने मर्जी तुम चुपे लाओ, टेंशन कोई नहीं। जी मुल्ला बेस साहब से बात करें उस्मान। जी मुल्ला बास साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि उसने जो बात की है उसने गलत की है। बात सुने यार, लेकिन जो बात सुने, आप इधर बैठ के उसी बात सुने यार भाई, बात सुने, रहे हो, ये कहाँ से अच्छी बात है? वो सुनवाते हैं आपको। नहीं वो मैंने सुन ली है, मैं नीचे ही था, लेकिन आप लोग ये मिर्जा के आपने अभी कहा है कि चूपे लगा, ये नीचे ये सुना दे शाहजी, सुना दे इनको, आप लोगों ये को सुना दे इनको, मैं भी घंटे का सुना दे। देखो हम तो उसकी तबलीग को आगे पहुंचा रहे हैं, अभी वो कहाँ हम तो उसकी तबलीग को आगे पहुंचा रहे हैं। वो मेरी बात तो सुन, बात सुनो यार, उसकी तबलीग को आगे पहुंचा रहे हैं मर्जियों। मैं इसलिए कहता हूं मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद सबसे पसंद। तुम अभी बता रहे थे चुप्पे लगा, इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनो ना, अभी मेरी बात सुने ना पूरी।
दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद ओ मेरी सुने ना, उसने जो बात की गलत यार ओरल यार, सेक्स आप वाली लोग बात इस तो बात सुन को लो सुना ना, रहे हैं लोगों को। कोई बात ज्यादा तो मुझे यार चुप आपकी कर। बेइज्जती नजर आ मैं रही है शायद कि कोई आप ऐसी ज्यादा बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर नहीं शाह जी, इस्लाम वो में तो सेक्स ओरल की सेक्स एजुकेशन वाला है। सुना दो। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के जी जी ओरल ਸੈਕਸ ਜਨਾਬ ਨਾਲੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। सवाल ये है कि क्या मास्टरबेशन हराम है? जी नहीं, ये हराम नहीं। वो है ओरल सेक्स का इशू। भाइयों इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई ममानियत नहीं आई। मौलाना खादिम हुसैन रजवी साहब के लिए दूसरा चैलेंज, पहले का तो जवाब नहीं आया, इंशाल्लाह क़यामत तक नहीं आएगा उन 2 वालों का। जी बात करें। मैं लिया उसको दोबारा शाह जी। देखे ना, अब कह रहा है जी तुम लोग कह रहे हो जी चुपा चुपा, जनाब वो कह रहा है, हम उसकी बात को आगे बयान करें। हम 2 मिलियन लोगों कहते जी 2 मिलियन उसके फॉलोअर हैं, तब शर्म नहीं आती कि 2 मिलियन लोगों ने ये भी सुना होगा कि जनाब ओरल सेक्स की कोई ममानियत नहीं आई। किधर गया? मैंने उसको इनवाइट किया, अब किधर गया वो? अब बड़े वैसे तपे हुए हैं, बड़े तपे हुए हैं, मर जाइयो, टेंशन ना लो। जी शाह जी आप करें बात। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ इंशाल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। बिल्कुल यार, तकलीफ ये हो रही है कि आपकी औरतों को ना, हमें एक मिनट बात सुनो यार, बात सुनो मेरी गल देखो। अभी तुमने आगे बोलना शुरू कर दिया, क्यों इतना हाइपर हो रहे हो, क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? ठीक है, हमें तकलीफ हो रही है, तकलीफ ये हो रही है कि जनाब तुम लोगों ने चूपा जो कहते हैं वो जनाब जायज़ है। ओरल सेक्स में जनाब कुरान हदीस में कोई ममानियत नहीं। अब हमें तकलीफ ये है कि जनाब तुम लोगों से सवाल हम करते हैं, तुम जवाब नहीं देते, तुम जवाब नहीं देते। अब बताओ तुम 3 टाइम ओरल सेक्स करते हो या 2 टाइम या 1 टाइम, ये बताओ मुझे। अब माइक अनम्यूट करो। हाँ बताओ। ओरल सेक्स का कहीं भी नहीं उन्होंने बताया कि ये जायज़ है, तुम किस मायने से बात कर रहे हो? मुझे ये बताओ शाह जी, ये सुना दे, वो कह रहा है कुरान हदीस में कोई ममानियत नहीं है, कोई भी क्लिप काट के नहीं सुनाना है। क्या पूरी किताब दूं आपको? और दलील के साथ बात करो। नहीं, दलील के साथ ही कर रहे हैं, दलील के साथ ही कर रहे हैं। किधर की है? अच्छा, मिर्जा जूनियर जेलमी ने कौन सी दलील से ओरल सेक्स जायज किया है, ये सुनो जरा। सुनाओ। वो है ओरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मुआशरे के अंदर राइज है। भाइयों इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई ममानियत नहीं आई। जी सुन लिया। हाँ जी, तो उसने क्या इसको जायज करार दिया? हाँ तो और क्या, ये सवाल इससे यही हुआ था कि अली भाई ओरल सेक्स जायज़ है कि नजायज़, कुरान हदीस में कोई ममानत आई है कि नहीं? तो वो कहने लगा जी भाइयों कुरान हदीस में ऐसा सच कोई ममानत नहीं आई। जो सवाल हुआ था उसी का जवाब उसने दिया है। मुराद ये है कि जायज़ है भाइयों। कौमे लूत का तो पता है ना आपको? नहीं, ओरल सेक्स का मुझे बताइए, उसका बाद में, कौमे लूत का जिक्र बाद में करते हैं। जो बाद में क्यों करते हैं? आपको कुरान से दलील चाहिए ना, तो आपको जी जी कुरान से ओरल सेक्स की दलील दी। आपने कौमे लूत के बारे में तो सुना हुआ है ना? नहीं, सुनी बातें नहीं करते हुए पढ़ी पढ़ाई करते हैं। आप आयत बताइए कहाँ ओरल सेक्स जायज़ है भाइयों? मैं कौन कह रहा है इधर है ये जायज? मिर्जा जूनियर जेल में कह रहा है, उससे सवाल ये हुआ था कि ओरल सेक्स, अली भाई ओरल सेक्स जायज है कि नहीं? वो आगे से कहता है कि भाई कुरान हदीस में ऐसा सच कोई ममानत नहीं आई। मैं कह रहा हूँ अब भाई ओरल सेक्स की अगर ममानत कुरान हदीस में नहीं आई तो टट्टी खाने की भी कोई ऐसा सच ममानत नहीं आई। टट्टी भी खानी शुरू कर दो, फिर मूत्र पीने की भी कोई ऐसा सच कुरान हदीस में कोई ममानत नहीं आई भाइयों, तो फिर मूत्र पीने भी शुरू कर दियो। अच्छा भाई ये कौन सी दलील है कि भाई एक किसी चीज को सच्चा साबित करने के लिए ये कह दिया जाए कि लो जी एज सच कुरान हदीस में कोई ममानत नहीं आई भाइयों? ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा दीन और मजहब है भाई? बताइए जुबैर साहब। बात सुनोगे तो सुनाऊंगा ना। अरे सुनाए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप तो जनाब आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी इस सवाल का जवाब यही मैं बता रहा हूँ कि कौमे लूत के बारे में आपने तो पढ़ा है ना। कौन सी आयत है? आयत बताइए, आयत बताइए।
कौमे लूत लूत मैं ओरल सेक्स की बात कर रहा हूँ, आप कौमे लूत पे पहुंच गए हैं। चलो जी ਇਹ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ? ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਛੜਿਆ? ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਔਰਲ ਸੈक्स करती करवाती सी। वो लवातत करते थे, यानी मकद से मकद को यूज करते थे। मकद को यूज करना एनल सेक्स कहलाता है, ओरल सेक्स नहीं कहलाता। ओरल सेक्स को और होता है। ਉਹ ਬਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾ ਨਾ ਆਪ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰਲ ਸੈਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ। ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਇੰਜ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ। ओरल सेक्स साबित करना ते जी कुरान पाक ते बकवास कर रहा है कि ओरल सेक्स कुरान पाक ते बकवास कर रहा है ना जी, ओही कर रहे हैं ना जी, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ओरल सेक्स ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਹਾਇਆ ਜੇ। तू मुसलमान है या नहीं मुसलमान? आयत ओरल सेक्स वाली पढ़िया कि नहीं पढ़िया? ओरल सेक्स दी कोई आयत नहीं होया कि तुसी अपनी औरतां नु छड़ के क्यों मरज़ई इल्मी किताबी तुसी हो, इल्मी किताबी मरज़ई मैं कहना मरज़ई इल्मी किताबी तुसी हो, हवाले तुसी देने ने। हवाला दे जल्दी। ओ सुन भी ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਸ ਸੈਕਸੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੁੱਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮਰਜ਼ਈ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? तेरे मर्जी क्या देख सुनो यार। वो है ओरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मुआशरे के अंदर राइज हैं, कुछ सही है कुछ गलत है। इसमें बुरी ओरल सेक्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं, राइज हैं, कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। कहता है सही भी हैं। आदि उसूल आप समझ लीजिए, और वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम। अब मरज़ई ए कुरान पाक दी आयत पढ़न लगा है, आयत पढ़ के साबित करन लगा है ओरल सेक्स जायज है। भाईओ चूपा जायज है। सुनो जरा, कुरान दी आयत पढ़ के काम करन पान लगा है तानू। समा जो है वो सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से साबित ही नहीं है। हलाल कर दिया है अल्लाह ने रमजान की रातों में भी तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है। व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम अपनी बीवियों का लिबास। अब ये लिबास मैंने जो पहना हुआ है, इस लिबास और मेरे जिस्म का कोई पर्दा नहीं है। मियां बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का लिबास है। अच्छा, इधर उस्मान जी, हाँ जी उस्मान, बस ਅੱਜ ਮੰਜੀ ਵਾਵਾ ਠੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾੜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੋ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਅਗਲੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਲਾਣੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਪੈਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਇਹ ਹਜੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਰੱਜੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਈ ਪੁੱਛਣਾ, ਰੱਜੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿਫਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਗਿਫਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਮ ਦਾ ਡੱਬਾ ਫ੍ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਧਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕੰਡਮ,
ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ। ਉਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਗੜ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਂ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਢੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਦੌੜ ਜੋ ਨਸੀਹਤਾਂ ਤੇ ਵਸੀਹਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤਿਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੋਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਡਰੋ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਰ ਤੇ ਖੋਫ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। जी ठीक है शाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।